Hello everyone. Today I am going to discuss about practice book of class 7 science lesson 1 nutrition in plants. Already we have discussed this chapter in textbook. Today I am going to discuss about workbook. So now come on the exercise. Here NCERT book objective type questions are given. Subjective questions 1 to 5 to be done in your notebook. Question number 6. Fill in the blanks. A. Green plants are called fill in the blanks since they synthesize their own food. ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है जब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो आंसर विल बी ऑटोट्रॉफ. B number, the food synthesized by the plants is stored as प्लांट्स के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो कैसे स्टोर होता है, किस रूप में स्टोर होता है. कार्बोहाइड्रेट्स. सी नंबर है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड. फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी कैप्चर किया जाता है, उस पिगमेंट को क्या कहते हैं. क्लोरोफिल. डी. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. Question number 7. Name the following. A parasitic plant with yellow cylinder and tubular stem is called amarbale. B. A plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition is called insectivorous plant. Here question number C is missing. The pores through which leaves exchange gases called stomata. Question number 8. Tick the correct answer. A. Amarbale is an example of autotroph, parasite, saprotroph and host. यहाँ पे अमरबेल किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का. B. The plant which traps and feeds on insects is called Cascata, China rose, pitcher plant, hair rose. इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स उनको क्या कहते हैं इनमें से, इज कॉल्ड पिचर प्लांट.
Match the items given in column 1 with those in column 2. Here column 1 and column 2 are given. You have to match the column 1 with column 2. Chlorophyll, leaf. Here nitrogen, bacteria. Amar bale, feature plant. Amar bale parasite, animal, heterotrophs, and insects, feature plant. Question number 10 है, mark T if the statement is true and F if it is false. B नंबर है इसका, A मिसिंग है. Plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs. वैसे प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं. ट्रू या फॉल्स क्या होगा आप लिख लेंगे. सी, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोटीन नहीं होता है. ट्रू या फॉल्स क्या होगा आप देखेंगे. डी, solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. True या false, solar energy को chemical energy में बदला जाता है photosynthesis के दौरान. ये statement true है या false. 11. Choose the correct option from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? Root hair, stomata, leaf vein, sepals. यहाँ सेकंड नंबर स्टोमाटा होगा. Choose the correct option from the following. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their लीव्स. प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं अपने पत्तियों के द्वारा. नाउ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स लैक क्लोरोफिल एंड डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग? A. Autotrophs, B. Heterotrophs, C. Parasites and D. Saprophytes. यहाँ पे राइट आंसर है पैरासाइट्स. सेकंड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर इन लीव्स? गार्ड सेल्स, क्लोरोफिल, वैक्यूले एंड कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल. थर्ड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? 1. All the animals are heterotrophs. 2. All the plants are autotroph. 3. Oxygen is given out during photosynthesis. 4. Carbon dioxide is required for breathing by all the living organisms.
द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा सही है। नीचे और भी सब ऑप्शन दिए हैं। ए में 1 and 3, बी में है 3 ओनली, सी में है 2 and 4, डी में है 1 and 2। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 1 and 3, ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ। एंड थर्ड, ऑक्सीजन इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी ए इसका राइट आंसर है। ए 1 and 3। वेनस फ्लाई ट्रैप फीड्स ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज इट इज अ हेट्रोट्रॉफ। वेनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट्स खाता है क्योंकि वह क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। ग्रोज इन सॉइल्स विच लैक इन नाइट्रोजन। C है does not have chlorophyll, and D है has a digestive system like human beings। किन कारण से यह जो है सो इंसेक्ट्स को खाता है। बी नंबर होगा इसका राइट आंसर। ग्रोज इन सॉइल्स विच लैक इन नाइट्रोजन, ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसलिए ये अपनी नाइट्रोजन को फुलफ़िल करने के लिए इंसेक्ट्स को भोजन बना लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ग्रोज इन सॉइल्स विच लैक इन नाइट्रोजन। सिक्स नंबर है, इफ़ वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस वी आर एबल टू फाइंड मेनी स्मॉल ओपनिंग्स। व्हाट आर दीज ओपनिंग्स कॉल्ड। ए मिडरिप, बी लेमिना, सी स्टोमाटा, डी वेंस। अगर हम एक पत्ती को मैग्नीफाइंग लेंस से देखें उसके लोअर सरफेस को, वी आर एबल टू फाइंड मेनी स्मॉल ओपनिंग्स। व्हाट आर दिस ओपनिंग्स कॉल्ड। तो हम देखेंगे उसमें बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, और इन ओपनिंग्स को क्या कहते हैं। मिडरिप कहते हैं, लेमिना कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, या वेंस कहते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड स्टोमाटा। 7 नंबर है, when two organisms live together and mutually benefit each other, such an association of organisms is termed as autotrophic, parasitic, saprotrophic and symbiotic। तो ऐसे जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और म्यूचुअली बेनिफिट इच अदर, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, ऐसे एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ रहते हैं उनके संगठन को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। डी नंबर होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स इज टेकन फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कौन सा रॉ मटेरियल जो है एयर से लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ऑनियन एंड पोटैटो आर बोथ अंडरग्राउंड पार्ट्स दैट स्टोर फूड। विच पार्ट ऑफ दिस प्लांट्स सर्व फूड। अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गिवन बिलो आर सम इसेंशियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐड द मिसिंग रॉ मटेरियल्स एंड कंप्लीट द लिस्ट। वाटर, मिनरल्स, ए
sunlight, B CO2, and C chlorophyll. Solve the jumbled words to form the terms related to mode of nutrition. फर्स्ट हो जाएगा सिम्बायोसिस, सेकेंड autotroph, थर्ड saprophyte, एंड फोर्थ parasite. थर्ड नंबर है the farmers who cultivate crops like grams, peas, moong, beans and other legumes do not apply nitrogenous fertilizers during cultivation. Why? यहाँ कह रहा है फार्मर जो फसल उपजाते हैं जैसे चना, मूंग, बीन, मटर, ऐसे दलहन, डू नॉट अप्लाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ड्यूरिंग कल्टीवेशन. वाई? उनको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करना चाहिए कृषि के दौरान. क्यों? क्योंकि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं इनके रूट में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो प्लांट्स को नाइट्रोजन पहुंचाने में मदद करता है. अगर ऐसे में हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाने से ये बैक्टीरिया मर जाएंगे. If you leave wheat dough in the open for a few days, it gives a foul smell and becomes unfit for use. Explain why. If you leave wheat dough in the open for a few days, it gives a foul smell and becomes unfit for use. Explain why. अगर आप गेहूं के आटे को ऐसे ही खुले में छोड़ दें कुछ दिन के लिए तो इसमें से एक गंदी स्मेल आने लगती है और ये बेकार हो जाता है, हमारे इस्तेमाल के लायक सही नहीं रहता है. क्यों? आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है आपको ऐसा क्यों होता है. List out the essential of photosynthesis. Also mention from where they are available. आपको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या आवश्यक है उनका लिस्ट बनाना है और उसके बाद ये भी मेंशन करना है कि ये कहाँ से उपलब्ध होते हैं या प्राप्त होते हैं. हम आगे देखते हैं. इसका क्वेश्चन है केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड लेबल द टर्म्स. ये डायग्राम स्टोमाटा का है, इसको आप ध्यान से देखें और जो बॉक्स बना है उनमें एरो के सामने उनका नाम लिखना है आपको. यहाँ पे
बीच में स्टोमाटा ओपनिंग है, साइड में आपका सेल गार्ड है और इस साइड ये साइटोप्लाज्म। यहाँ पे एक माइंड मैप दिया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 2 एरो बना है, एक एरो में सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड। फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या सब्सटेंस एब्जॉर्ब किए जाते हैं उनका नाम लिखना है। और फोटोसिंथेसिस के बाद आफ्टर फोटोसिंथेसिस कौन से प्रोडक्ट बनते हैं या रिलीज होते हैं उनका नाम लिखना है। सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब में हो जाएगा वाटर, CO2 एंड सनलाइट। प्रोडक्ट रिलीज्ड में हो जाएगा O2 एंड ऑब्टेन्ड में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने पढ़ा था 2 टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में भी 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। फर्स्ट है पैरासाइट, सेकंड है इंसेक्टिवोर्स एंड थर्ड है साइप्रोफाइट। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आपको उसको कंप्लीट करना है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रिपेयर फूड। फोटोसिंथेसिस के दौरान यूटिलाइज करके फूड बनाया जाता है। क्या होगा यहाँ पे? लाइट एनर्जी। In the blanks are called the food factories of plants. Leaves are called the food factories of plants. Third number है water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Water और mineral जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट के द्वारा एब्जॉर्ब्ड किए जाते हैं और ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स और पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। 4 नंबर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। CO2 जो एयर से लेते हैं टाइनी पोर्स के थ्रू, ये टाइनी पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। 5th नंबर है द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। 6th नंबर है क्लोरोफिल हेल्प्स टू कैप्चर द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द fill in the blanks. Chlorophyll helps to capture the light, capture the energy of the sunlight. 7th number है this energy is used to prepare food from carbon dioxide and water. Is used to prepare food from minerals and water. This energy is used to prepare food from carbon dioxide and water. This is the right answer. ये हमारा फोटोसिंथेसिस का फ्लो चार्ट हो गया कंप्लीट। हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ टर्म मिसिंग है। न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। कैसे जो है सो मिट्टी को
मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स पुनः भरे जाते हैं। ये हमारा सिर्फ 2 स्टेप यहाँ है, बाकी के 3 स्टेप मिसिंग हैं, आप देख लेंगे। मैं बोल देती हूँ, आप अपने बुक से मिला लेंगे। फार्मर्स यूज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र टू मेक द सॉइल फर्टाइल। ये है फर्स्ट नंबर। इसके बाद सेकंड नंबर है न्यूट्रिएंट्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, phosphorus and nitrogen enrich the soil. थर्ड नंबर है plants need nitrogen gas in a soluble form. फोर्थ नंबर है rhizobium bacteria present in roots of plants take atmospheric nitrogen and convert it into soluble form. फिफ्थ नंबर है in return the autotroph plants provide food and shelter to the bacteria, thus they have a symbiotic relationship. हो गया हमारा ये फ्लो चार्ट भी कंप्लीट। हम आगे देखते हैं। थर्ड नंबर है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट एंड इंसेक्टिवोरस। यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं, उनको पैरासाइट, सेप्रोफाइट और इंसेक्टिवोरस के कैटेगरी में आपको रखना है। यहाँ पे है फंगी, मशरूम, कसकट्टा, पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप। फंगी किस में आएगा? सेप्रोफाइट में। मशरूम भी सेप्रोफाइट। कसकट्टा आ जाएगा आपका पैरासाइट। पीचर प्लांट आ जाएगा आपका इंसेक्टिवोरस और वेनस फ्लाई ट्रैप भी इंसेक्टिवोरस में। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन सेक्शन 2 इन अ नटसेल। ये डिफाइन करना है आपको। यहाँ पे न्यूट्रिशन पहला नंबर है, सेकंड है ऑटोट्रॉफ, थर्ड है हेट्रोट्रॉफ, फोर्थ है फोटोसिंथेसिस, फिफ्थ है पैरासाइट्स, सिक्स्थ है सेप्रोफाइट, सेवन्थ है इंसेक्टिवोरस, एट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ क्वेश्चंस मिसिंग रह गए हैं, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आप ये डेफिनेशंस आपकी वर्कबुक के फ्रंट पे, चैप्टर के फ्रंट में दिया है, आप वहाँ से लिख लेंगे। गिव रीजंस सेकंड नंबर है इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, इसके बारे में आपको रीज़न देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हमारा फिर मिसिंग है। मैं क्वेश्चन बोल दे रही हूँ, आपको समझा दे रही हूँ। द पीचर प्लांट इज़ अ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट, गिव रीज़न। पीचर प्लांट जो है वो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट होते हैं, इसका कारण आपको बताना है। Because pitcher plants depend on insects to fulfill their nitrogen requirement. Thus, pitcher plant is a heterotrophic plant. Third number है a symbiotic relationship is of great significance to farmers. Symbiotic relationship जो है ये किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आपको कारण देना है।
फोर्थ नंबर है कैक्टी हैव नो लीव्स बट दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। कैक्टी जो पौधा है उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, उसके बावजूद भी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। फर्स्ट नंबर यही है, आपको इनके बीच डिफरेंस बताना है, अंतर स्पष्ट करना है न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन का डेफिनेशन दे करके बीच में अगर आप बट लगा देते हैं इन दोनों के डेफिनेशन के बीच में, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ, इसमें भी आपको वही करना है, आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको। इसके बाद जो पोर्शन रह गया है हमारा, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास।